Good evening, everyone. I am Vishal Gupta. I am your host of today's session along with Chetan and Bipul. Let's wait for 2 minutes and let everyone join. आ जाने दो, कोई इश्यूज नहीं है, सब आ जाएंगे उसके बाद ही। हाँ भैया। Hello, everyone. Good evening. Myself Vishal Gupta, and I am your today's host. Good evening, everyone. Myself Vipul Raj, and I am your co-host. Good evening, everyone. My name is Chetan Rawat, and I am your co-host. Thank you all for finding time and visiting the webinars. I extend you a very warm welcome to you. Now, without any further delay, I profusely overjoyed to welcome our chief speaker, Harshdev Chaudhary and CS Silpi Thapar, ma'am. Mr. Harshdev Chaudhary is an alumni of Ramjas College and who secured All India Rank 10 is CS Foundation and All India Rank 6 in CS Executive. And he is also the founder of Tax Loop, which brings insightful content on tax, finance, and topics related to economy. Ma'am Silpi Thapar, a practicing company secretary, insolvency professional. She was also a chairperson of Ahmedabad chapter of the Institute of Company Secretaries of India. She also owns a firm with her Silpi Thapar and Associates. Just before starting the session, just a little bit housekeeping before we get started. If you have any question regarding the presentation or any regarding the topic, please put that in the chat box. We will pick up at the end of the session. Thank you. Over to you, Bhaiya and ma'am. Thank you, Vishal. Thank you. So, ma'am, just to start with this, that I'm feeling greatly honored to share this session along with you, and really excited to have you on this platform and share your insights about CS, about the course. And just to tell one thing, Vishal, Vipul, and Chetan, just you know
be loud, little loud, right? So, ma'am, can we, as just to tell you all about the structure of the session, how we are going to take this? There is no PPT, right? I would be sharing a PPT on some of the topics, some of the few topics, but apart from that, it is a discussion. So I want all of you to take part in this. ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ एक मोनोलॉग होने वाला है. ठीक है, आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड ऑब्वियसली मैम एंड मैं अगर यहाँ पर है तो हम भी यहाँ से कुछ लेकर के जाना चाहते हैं, राइट? सो वी ऑल्सो वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस. मैम, over to you, if you want to introduce yourself, or how do you want to start the session? So, hello everyone, and thanks for inviting me, for this fruitful discussion. It's my pleasure. So, as Harsh already introduced me, I'm a practicing company secretary from Ahmedabad, and I'm practicing as a company secretary from last around 19 years now. So, my firm name is Shilpi Thapar and Associates, and we work with all corporate clients, including public, private, government companies, Section 8 companies all over India. We are having a head office at Ahmedabad and associate offices in Delhi, Mumbai, and Wati. So, I have received many questions from you, Harsh, and so I would like to take one by one. I think everyone has joined. We can start, or Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone is here, Yes, so ma'am, everyone. we can take the questions side by side. Yeah. So it's a general awareness session actually that I think the most of our who are attending this session are at what level they are studying in the college in BCom level or 12th pass, or what is a basic. Ma'am, college. So yes. So, They are all. So you all are yes, from yes. Ramjas College, right? Yes. All right. Yes. Okay. So the structure of how we are going to I'm going to answer your queries. I think we have received almost 12 to 13 questions from your side, like who is CS? Like, Yeah. company secretary. Who is a company secretary? Right. Why company secretary? Yes. Why to choose a career as a company secretary? How to know if you are good fit for doing the CS course? Whether to that's always a it's a very important decision, whether to go for a chartered accountant course or a company secretary course. So how to choose for that? It's a difficult choice to make. Then what are the courses to join side by side besides doing your CS and your CS training? So what is the profile of company secretary in any organization? What qualities a company secretary must possess to pass CS exams and to become a successful CS? How to manage CS with college studies? What is the journey of becoming CS? What is the package? What package you get as a CS? Role and scope of company secretary in future? And which course is better, CA or CS? And how to manage both the courses together simultaneously? And how to start a preparation for becoming a CS? Like if you want to join a CS along with your BCom, then how to do it. So let us start with the first question. Who is a CS? So as you know that, with increasing global corporate scams, financial crisis, all over the world, the government of different nations is becoming very stringent, as far as controlling the economy of the company, and corporate plays a very important part in contribution to the economy of any of the nation. So day in, day out, there are many amendments. If you see corporate laws, SEBI is becoming very stringent. Taxation part, you can see the income tax laws are changing day by day. So because of all this, they need a proper, a qualified professionals who can handle the different fields. Like, if it's a chartered accountant, he has to handle the accounting and finance field of the corporates. If it's a company secretary, he's responsible for handling the corporate governance matters and legal matters of the company. So obviously, if you see in olden days also, if you see our Asian literatures and like Ramayana or Arthashastra, the Kautilya Arthashastra, which is the base of our corporate governance in India. So there the term was used as Sachiv. Sachiv means who was a prime in the kingdom. Like the king used to consult him for any policy decisions. So like that, the same position is of company secretary in any organization. So company secretary is the most respectful, I would say, the position you held in any corporates, and all departments of the corporates rely on a company secretary. The board relies on the company secretary for any policy decision. So you can say it's a corporate compliance officer,
It's a chief advisor of the board of directors. It's a multidisciplinary professional, in-house legal expert, a compliance officer, and chief compliance officer of the company. It's a bridge between the board and the stakeholders. Like, the board is responsible for making all the decisions, all the policy decisions, how to run a company, how to manage the operations of the company, but doesn't have a time to interact with the stakeholders. Stakeholders include shareholders, bankers, your creditors, your debtors. So it's a bridge between the board of directors and the stakeholders. He's a custodian of the corporate governance, guardian of the company. He's a main implementator of the legal compliance in the company to look after the legal environment of the company, a main representative of the company. Now, you must be knowing that Companies Act 2013 was introduced, in year 2014. So it has given a lot of leverage to the profession of company secretaries. So I think company secretary is an indispensable post in any company now. And the recognition of key managerial person is given to the company secretary along with the CFO and CEO. So you are at a senior level management, you are included in the senior level management of the company, just below the board of directors. You can see that, you can imagine your position in the company. And even the government, the ministries, the tribunals, they all need the opinions and advice of the company secretaries. So, they are the expert in corporate laws, they are expert in securities laws, they are expert in the corporate governance matters, capital markets. So this is the basic, what is a company secretary. This is a, brief profile that what company secretary basically do in the company. Now we come to the question that why you need a company secretary, why the company secretary is needed. So legally, if you see, there is a section 203 in the Companies Act, which requires any listed company or a public limited or any company having a paid up capital of 10 crores or more needs to have a whole-time company secretary in the company. So if the organizations are falling, whether it's a government company, a Section 8 company, or public listed, whatever, listed companies are compulsory, they are required to hire a compliance officer who has to be a qualified company secretary, and other companies having a paid up capital 10 crores, they need to have a full-time company secretary. So without company secretary, the board cannot take any policy decisions, because in every decision there is a legal impact. So they will ask you that, before taking any decision, you are the part of all the board meetings, you are a part of all the shareholder meetings, you are in constant touch with the senior management, all departments are relying on you for everything. So you are the main officer, a main key managerial person of the company. So this is the importance of the company secretary in any organization. Any doubts on that, anyone? Ma'am, just one thing that before we take further questions, Yeah. I would just like Vasudha just share that that PPT which I shared with you, so that it is visible on the screen. I just want to touch on this point, like what is corporate governance, because Yes, just one we are second. talking about it, and company secretary की बात करेंगे तो that is the main point, the Yes. main central point about Yes. corporate governance. So I just want to give a brief about it, and then if you allow me, I can share that, and then we can. Go ahead. Yes, thank you so much, ma'am. I think I'm facing some net issue. Just give me 1 second. Yeah, I'll ask no someone else problem. to do it otherwise. So, is there anyone जिन्होंने लैपटॉप से ज्वाइन करा है, and that person can share that? Yes, I have joined from laptop. Yes, Vatsal, I'm sharing the video. Okay. So, okay, till you are sharing the screen, ma'am, if you want, you can go for the next one. So I think corporate governance, if we define in a very simple terms, is how the company is controlled and directed. So the practices which the board of directors adopt,
to direct and control the company is called a corporate governance, which includes everything like board processes, the legal compliances of the company. So the main part, if you see, the company secretary is called a governance professional. So we govern the company, so that because the board has a lot of responsibilities, legal statutory duties to perform. So the board always consult the company secretary before taking any policy decision, so that it can be protected legally. The company can be protected, the stakeholder interest can be taken, into account before taking any decision. So वो बोलते हैं ना मंत्री, just like a close aid to the board of directors. So the board cannot do without a company secretary. That is the position of a company secretary in the company. So just come down a little bit. Vatsal, just go down to the last slide, last 2 slides. Yes. So मैम ने भी जैसे बता दिया आपको कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, एंड बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है वो अगेन एंड अगेन आएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी सेक्रेटरीज, राइट? What is corporate governance is a very core question in terms of the profession of company secretaries, because देखो कंपनी सेक्रेटरी ना कैडबरी जेम्स जो चॉकलेट होती है ना उसकी तरह होता है, ठीक है? एट द कोर ऑफ इट एवरीथिंग इज सेम, फंडामेंटल वो क्या है, चॉकलेट है, बट कलर्स अलग अलग है, राइट? सो वी आर प्लेइंग द रोल इन डिफरेंट वेज, लेकिन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे आना वत्सल. सो लेट्स अज्यूम कि अभी यहाँ पर कोई सेशन नहीं हो रहा है, एंड मैं और मैम जो है हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी के जिसका नाम है कॉमजॉक लिमिटेड, ठीक है? और आप सब लोग जो हो, जो मेंबर्स हो सोसाइटी के, वो इसके शेयर होल्डर्स हो फॉर द टाइम बीइंग. एंड जो भी कोर टीम है, वो कोर टीम जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, राइट? अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब आप देखते हो तो 4 चीजें बहुत मेन हो जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में. सबसे पहली चीज बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस. नाउ व्हाट इज मीन बाय बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस का मतलब दी पावर्स ऑफ कोर टीम. अब आपकी कोर टीम में प्रेसिडेंट है, योर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, राइट? उनके पावर्स क्या होंगे, वो लोग किस तरीके से पावर को एक्सरसाइज करेंगे, वो इसका पार्ट बनता है. देन उसके बाद मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट कैसा है. सो यू हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव, राइट? अभी ये सेशन आप लोग क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो? आप लोगों ने कॉमर्स वीक रखा, तो कॉमर्स वीक रखने का आपका एक ऑब्जेक्टिव है, राइट? सोसाइटी फंक्शन कर रही है, उसका एक आपका एक ऑब्जेक्टिव है. देन उसके बाद यू हैव ट्रांसपेरेंसी. आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, यू शेयर दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन सोशल मीडिया. तो आप बताना चाहते हो कि यार ओके वी आर डूइंग द वर्क फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. देन उसके बाद यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल विशाल, विपुल एंड ऑल दीज members are responsible for now for the handling of the session, कि आप लोग सेशन अभी हैंडल कर रहे हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो ऐसे क्लियर लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के लिए सोसाइटी के अंदर जैसे होता है वैसे ही कंपनीज के अंदर भी रहता है, राइट? देन उसके बाद अकाउंटेबिलिटी. आपने क्या काम करा, प्रेसिडेंट के साथ आपकी मीटिंग होती होगी, सारे हेड वहां पर होते होंगे, राइट? तो आप हेड की तरफ अकाउंटेबल होते हो, देन हेड इज अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट. वो चीज इसके अंदर आ जाएगी. उसके बाद में रिकॉग्नाइजिंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप कंट्रीब्यूशन. आप एक दूसरे को बोलते हो कि ठीक है यार मैं ये वाली चीज संभाल लूंगा, राइट? आप यू आर वर्किंग एज अ टीम, आप एक टीम की तरह काम कर रहे हो. आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी आप दे रहे हो एंड ग्रुप कंट्रीब्यूशन भी आप दे रहे हो. यू आर डेली कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, लाइक द आइडिया ऑफ कॉमर्स वीक हुआ, या पहले जब करा था हम लोगों ने तो तरंग का आइडिया हुआ, राइट? सो ये सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. द सेकंड पार्ट इज कंप्लायंस ऑफ लॉ. Now, when it comes to compliance of law, you are talking about disclosure and reporting. As I said, project report of ComZoc, right? Apart from it, एक और जो लेयर होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, जो जिनको आप रिपोर्ट करते हो, जो सर होते हैं डिपार्टमेंट जिनके अंडर होता है, ठीक है? तो वो आ जाएगा कंप्लायंस ऑफ लॉ के अंदर. देन एडरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड. ना एडरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? सपोज करो कि कल से आपको प्रेसिडेंट बोल दे या कोर टीम के लोग बोल दे कि देखो अपना अपना देख लो, हम तो कुछ भी नहीं करने वाले, right? So you cannot do this. You cannot compromise general interest on specific interest, right? This is what adherence to ethical standard is. So society का interest protect करना है, not to manipulate the records. अच्छे ऐसा नहीं कि हमारे सेशन में तो भाई लाखों लोगों ने अटेंड करा था, right? You will not do this. So not to manipulate this records, you have to give clear picture कि हम लोग क्या करते हैं as a society. अभी एक वीडियो भी शेयर हुआ था कुछ दिन पहले जहाँ पर आप बता रहे थे कि हम क्या करते हैं as a society, right? तो वो चीज यहाँ पर आ जाती है. देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में अगेन यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज बाय बिकमिंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड आप सिर्फ मेंबर्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, बट जो कॉमर्स पूरे डिपार्टमेंट का पार्ट है उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही। तो ये एक चीज इसके अंदर आती है। देन नॉलेज, स्किल्स, राइट, ये सारी चीज मिलकर के क्या बनाएगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दिस इज द आइडिया ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैम यू कैन कंटिन्यू। Right. Was a good presentation, Harsh. Okay. So now, I think most of आपको आइडिया आ गया होगा कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या प्रोफाइल रहता है, क्या रोल रहता है। मतलब मेरे हिसाब से आप पूछो तो इट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑन द इन द बोर्ड रूम एक्चुअली। एक सीएफओ, एक सीईओ और एक सीएस, ये 3 जनों का रोल कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सीनियर लेवल पोजीशन होती है, एक हाई प्रोफाइल पोजीशन होती है, जो तीनों की होती है, और कंपनीज एक्ट के अंदर भी दे आर डिफाइंड एज अ केएमपी, की मैनेजर पर्सन। Now the next question is how to know if you are a good fit for doing the CS course. So सबसे पहले तो when you are in 12th standard, you have to see that you have to analyze what subjects are there in a company secretary course. Basically everything revolves around the regulations, law. So you should analyze yourself that whether you have a good interpretation of law skills or not. आप किसी भी law को अच्छे से समझ सकते हैं, interpretation करने की आप में क्षमता है, आप में उतना अपने स्किल है, तो आपको वो चीज, तो आपको ये इसके बारे में सोचना चाहिए। सेकेंडली, if you are interested in exploring the future in legal compliance, मतलब आपको लीगल एरिया में आपको अपना फ्यूचर एक्सप्लोर करना है, तब इसके बारे में, ये कोर्स के बारे में आप सोच सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द लीगल कंप्लायंसेस एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। फिर आपका, जैसे मैंने बताया, आपका लॉ का इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन द कंपनी you have to communicate with the huge amount of stakeholders, with the board of directors. तो आपका वो communication skill बहुत clear और बहुत अच्छा होना चाहिए. If you are very, if you have a good grip on your communication, I think this is the best line to go. Your interpersonal skills, किस हिसाब से your team spirit, कैसे काम करते हैं आप, आपकी interpersonal skills क्या है, आपके में leadership qualities है, management qualities है कि नहीं, because it's all about getting work from the people. So ये एक बहुत important skill है, और आप में वो एक zeal है of continuous learning, continuous updation, because अगर आप CS हैं तो आपका continuous updation रहेगा, because laws are changing day in day out. So वो अगर आप में उतना patience है, उतना stamina है कि हर रोज आप almost 2 घंटा अपडेशन करें अपने आप को, then I think this course is perfect for you. So in short, आप CA देखें तो it's all about the financial management, and this is about the legal management. So if you have interest in the legal field, to explore the legal field, then I think this course is the best fit for you. Now, the next question which came to me is that which courses we can join side by side with CS. I think the best combination is LLB. Most of the, I think 90% of the students are going for LLB. If you are, of course, if you have done your after graduation, if you are joining, you can do your LLB with CS. CA is the best option, because if you analyze the courses, the subjects of both the courses, I think 60-70% there is a similarity in the courses. Accounts or taxation का इतना weightage नहीं रहता है CS में, which is more weightage in the CA, but आप you have similarities between these two courses if you compare it. So CA is the best option. अगर आप CA कर लेते हैं तो obviously your the profile in the company will be much stronger. You can have a position of both the CFO and CS in the company. Then ICW is there, CFA is there, MCOM is there, and many other courses, but this, I think these are the main courses. LLB, people do LLB, people do CA, people do ICWA, who are most interested in cost accounting related matters, and the MCOM also people do. So these 3-4 courses, people generally go for along with the company secretary course. Now, the next question we have already discussed, that what is the profile of CS in the organization. I've already explained you that it's a bridge between the board of directors and the stakeholders. So the board cannot do without CS actually in taking any policy decision. If I'm into practice from more than 19 years, and I day in day out I used to attend the board meetings of my big corporate clients.
So what I observe is that the chairman or the board, they are completely relying on me for any decision which they are taking on any agenda point. मतलब कोई भी agenda point आएगा तो first they will ask me that we are proposing to take a decision whether this is legally right or not. So that kind of position you have in the company on the board. So without your yes, they will not go further. And इवेंचुअली इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चांस टू गो रॉन्ग एनीवेयर. You have to be fully updated, about the laws. You should have a proper understanding of the business. आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस क्लाइंट को आप एडवाइस दे रहे हैं, उसका बिजनेस क्या है, उसका मेन उसका एजेंडा जो बोर्ड में डिस्कस होता है वो आपको प्रॉपर्ली रीड करके जाना पड़ता है. You have to do your homework, so there is no chance of going wrong there, because अगर आपकी एडवाइस रॉन्ग हो गई तो इतना बड़ा जो स्टेक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होल्ड करते हैं, they will be responsible for everything because they are answerable. Because in listed companies you can, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा स्टेक होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए. So this is along with the power, the huge responsibility comes. So ये पूरा स्कोप है. प्लस अगर आप एम्प्लॉयमेंट में है, जैसे मैं प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, तो वी एडवाइज द क्लाइंट्स डे इन डे आउट इन द मीटिंग. बट इफ यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, you have to deal with thousands of stakeholders. अब listed company secretary है तो वहाँ तो the shareholders numbers goes in lakhs. So आपको हर एक शेयर होल्डर का ध्यान रखना पड़ता है, हर एक क्वेरीज आपको रिजॉल्व करनी पड़ती है, हर एक डिपार्टमेंट से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. जब बोर्ड मीटिंग होती है तो एजेंडास प्रिपेयर होते हैं, दैट गोज इनटू 500,000 पेजेस, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके. सो ऑल लीगल कंप्लायंसेस, आपका जो कंप्लायंस का जो स्कोप है वो सिर्फ कंपनी एक्ट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है. इफ यू आर लिस्टेड कंपनी, goes up to SEBI laws, it goes up to labor laws. जो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं वो तो पूरा लीगल स्ट्रक्चर देखते हैं, लीगल कंप्लायंसेस, रेगुलेशंस देखते हैं, कंपनी का कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है. So this is what the position and power you hold in any company. So basically you are an in-house legal expert. Okay, you are a chief advisor to the board of directors. The board always consult you before taking any policy decision, because इतने ज़्यादा powers, इतनी सारी legal duties और responsibilities companies act के अंदर है board के लिए, they have no chance to go wrong anywhere. They cannot afford to go wrong anywhere. The penalties are so high on the companies. So this is a basic thing. And if you ask about the roles and functions of company secretary, it is to report to the board about the compliance of the provisions of the acts and rules under various corporate laws, to ensure that the company complies with applicable secretarial standards, to provide directors of the company such guidance as they may require with regards to performance of your duty and responsibilities, to assist and advise the board in ensuring good corporate governance practices and requirements in the company, and to help the board to conduct the affairs of the company. मतलब आप उनकी मदद करते हैं, जो भी वो अफेयर्स कंडक्ट करते हैं, you help them in the board to take a policy decision regarding that. So you are a corporate planner and a strategic manager. That is a position. Now the next question which came to me is what qualities? Okay. One minute. What is the profile we have discussed? What qualities CS must possess to pass CS exams and become a successful company secretary? So I think for passing any exams, you have to be good strategist. Proper planning की जरूरत है. अब जैसे ही 12th स्टैंडर्ड में, जैसे अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, तो ऑब्वियसली आप ग्रेजुएशन के बाद अगर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, you have to start researching on that course now. You have to do your self analysis, whether I am good in financial management or whether I am good in legal management. I think till this date you are very much aware that what is your strength. जो जिसका accounts और taxation अच्छा है, I think they will be more inclined towards CA course, and जिनका law अच्छा है, understanding interpretation of law अच्छा है, they can definitely opt for this CS course. So first is you have to do your self analysis. Always prepare a strategy before starting. Study the subject thoroughly. Start, just go and consult the chapters of ICSI, local chapters. See what are the modules or what are the subjects, in the executive program and professional program. Just get an idea about, कि क्या subjects में क्या content है, whether you will be able to do it or not. Then time management. After that,
आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसा है, मतलब किस हिसाब से यू inclined to devote the time to the course side by side. You have to start preparing, even if you are not enrolled. If you enroll after graduation, still you can start preparing for your executive program if you have a time with that. Practice writing daily. Writing की practice करनी भी बहुत ज़रूरी होती है along with the updation, because this will help lot during this appearing for the CS examination. Update yourself about the legal circulars, clarifications, notifications. I think आपके BCom में भी corporate law का subject होगा. You must be having company law subject. Or Yes, this is ma'am. first? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. So you have to be very much keep yourself updated about the current affairs. आप जो भी mostly income tax के जो major circulars आते हैं, NC के circulars आते हैं, you have to keep updated on that. You have to start accessing the websites of SEBI, NCA, BAC, NSE, just out of curiosity, क्या क्या notification है, क्या कैसे क्या contents होते हैं website पे, just to sensitize yourself. Then start reading corporate laws, company law, keeping aware of the regulatory changes from the authorities. So this is something, the skills which I think for any professional course you need before starting the any professional course. And for obviously for becoming a company secretary, a successful company secretary, I think degree is just a passport. Everyone knows. अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कितनी है, आप जहाँ काम कर रहे हैं, जो भी क्लाइंट को आप कंसल्ट कर रहे हैं, उसका बिजनेस आपको किस हद तक समझ में आता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप में मल्टीटास्किंग स्किल्स है कि नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज, your planning skills, your communication skills. Communication skills I think is the most important part of your personality. अगर आप communicate ही नहीं कर पाएंगे, whether you are a chartered accountant or company secretary, doesn't matter. I think in any profession you won't be able to achieve that level of success. Your networking skills, किस हिसाब से आप networking करते हैं, your IT skills, your readiness to work for longer hours, because once you are in this position there is no barring on time. ये कोई 9 to 6 job नहीं है, it's a full responsible job, because you are a KMP of a company. जितनी responsibility और legal liability directors की बनती है, board की बनती है, उतनी ही आपकी बनती है. You cannot go wrong anywhere. So वो आपको अपना ही काम समझ के you have to devote the long hours for your work. And regular reading, किस हिसाब से आप कितने अच्छे रीडर है, अपडेशंस. I'm again repeating that we cannot go wrong anywhere. We don't have any, we cannot afford to go wrong anywhere, because we are the chief advisors to the board. So ये सब skills you need to to become a successful professional, whether it's a chartered accountant or a company secretary, doesn't matter. So these are the skills we require. Now the next question which came to me is how to manage a CS with college studies. I think again the time management is an important skill over here. Once you have decided, because आप अगर first year second year में है, तो I think you are very much clear that what you want to do in life, right? And what strength you are having. You are good in financial part or legal part, or you're good in business, you're good in management. You have to start deciding about the options which you want to explore after your completing your graduation. And I think time management is more important. I started my CS, I did my foundation. So when I was in first year BCom, I cleared my foundation. With college, I finished my intermediate. And after that, I appeared for final. So I think I was 22 or mostly 22, or 22 or 23, I completed my company secretary course. So it's all about the time management or your passion, towards completion of your goal, I think. Then the next is, what is the journey of becoming a company secretary? Like how you can become a company secretary? I think first of all, you should visit a website of the Institute of Company Secretaries of India. It is www.icsi.edu. Everything you will get there. What is company secretary? How you can enroll yourself and how you can prepare yourself. All sort of the guidelines and everything is given on the website very beautifully. But generally, there are 3 stages which is required to clear the company secretary course. First is CS Executive Entrance Test. If you are 12th pass, then you are going to appear for this test. But if you are already completed a BCom or you're in BCom, then you can straightly get admission after completion of becoming CS Executive. And in this CS Executive
executive entrance test, it is just like a common competitive exams, like what we appear for a competitive exams. The subjects are common, like current affairs, reasoning. We basically test your IQ. So वो होता है after completion of CS executive, then you come for a CS professional. Then along with the CS executive, you can go for a 21 months apprenticeship training anywhere under CS firm or under corporate. And then after that, there is one more training, executive development program for 1 month. And then there is a corporate leadership development program of minimum 30 days and maximum 60 days. So after you complete all the stages, then you will be eligible to apply for the membership of the institute. So basically, it takes 4 to 5 years, to complete CS course, just like a chartered accountant course. Now, the very important question is, what is the package of CS? कितना पैकेज मिलता है? See, अब सब again, इंटरेस्टेड हो जाएंगे. yeah. See, again, I repeat that sky is the limit, actually. So if you have good leadership skills, if you develop, you give importance of developing your character more, I think sky is the limit in any profession. But yes, after completion of your CS, the minimum package 3 lakhs. But again, it depends on which location you are applying for, whether you are in metros or 2-tier cities. So normally the starting package is from 30 to 40,000 per month. 40,000, and listed companies में कई बार ज़्यादा भी हो जाता है. And sky is the limit. In the big companies, if you see like Hindustan Lever and this Infosys and all that, the company secretary draws 5 crores per annum. So after वो level he is a different level. You are at a senior level management, but then it depends on you. How you prove yourself and what kind of value addition you do to any organization. So money is not even when you are in practice also. Obviously, first 5 years is difficult because आपको clients लाने पड़ते हैं, आपको perform करना पड़ता है, आपको clients retain करने पड़ते हैं. But after that, then money doesn't matter. It gets multiplied. So practice में सीधा multiplication होता है. Once you get settled for 5 years, then sky is the limit. So I think it's a very lucrative. और अभी the future is upswing only. This हिसाब से government, is very keen in developing the governance all over the country, nation governance. Our prime minister is more inclined, to have a proper governance in the country. So corporate governance is a major part. Without corporate governance, there is no governance in any nation. Corporates is properly governing only because corporate contribute to the major contribution to the economy is by the corporates only. The corporates governing only. So how can any nation flourish? And in that, company secretaries will play a very important part, indispensable, you can say, position in any company. So बहुत bright future है, but उतना ही है कि अगर आपका legal, you are more inclined to the legal management, तभी आपसे post हो पाएगा. So, ma'am, just to touch on this point of scope, of future scope, I just want you to tell about CS and blockchain, right? What are the recent developments in this field and how the role of CS would be in this field? So, Vatsal, just please share that PPT again. Go on top, the first slide, right? First one. Yes. So देखो, it's a हर कोई ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि टेक्नोलॉजी है तो स्कोप क्या होने वाला है, राइट? द जॉब ऑटोमेशन, द AI थिंग, एंड होता क्या है ना कि लोग उसको बिना समझे आपको ये बता देते हैं कि चलो अब आपका स्कोप खत्म हो गया, ठीक है? तो दिस इज, आई थिंक ये सबसे ज्यादा गलत है. यू हैव टू डाइव डीप इनटू एवरीथिंग बिफोर सेइंग दिस, बिकॉज देखो, CA हुआ, CS हुआ या MBA हुआ, एवरीवन इज प्लेइंग देयर रोल इन द इकोनॉमिक साइकिल ऑफ द नेशन, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने एक को अलग कर दिया तो फिर वो साइकिल आपका चलता रहेगा, वो साइकिल आपका खत्म हो जाएगा, राइट? हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं. उस चीज को ध्यान में रखते हुए जस्ट एक इस पॉइंट पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ. देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, यू हैव ऑटोमेटेड बोट पोर्टल्स ऑल्सो, जैसे मैम ने डिस्कस करा आपके साथ कि
बोर्ड को मैनेज करना हमारा मेन काम होता है, राइट? हम एडवाइस करते हैं बोर्ड को, तो कहीं ना कहीं बोर्ड जो होता है अगर वो खुद ही अपने आप ही चीजें करने लग जाएगा तो हमारा रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है? लोगों का कहना ये है, बोर्ड पोर्टल्स जैसे आ गए, तो विल डिस्कस दैट आल्सो, बट फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस अबाउट द ब्लॉकचेन पार्ट. तो वत्सल जस्ट कम डाउन टू द सेकंड स्लाइड. सीएसएन ब्लॉकचेन और एक रीसेंट चीज जो अभी हुई है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट होता है सीएस के लिए. एक तो होता है जब कंपनी लिस्ट होने वाली होती है, राइट? आप सबने सुना होगा आईपीओ के बारे में. सो एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर आई थिंक अबाउट द आईपीओ. एंड उसके बाद एक लिस्टिंग होती है, जोमेटो का काफी रिसेंटली हुआ है, नायका हुआ है, ठीक है? यू हैव पेटीएम ऑल्सो. तो वो सारी चीजें हुई है. अब ऐसे ही एक और मेजर इवेंट जो कॉर्पोरेट का होता है वो होता है हमारा एनुअल जनरल मीटिंग का, जहां पर मतलब आप सोते नहीं हो उस टाइम पर, ठीक है? ऐसा बोला जाता है बिकॉज यू आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन दिस. तो अभी जो रिसेंटली हुआ है वो ये कि अब आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है? अभी क्या होता है, शेयर होल्डर्स जो है वो फिजिकली मीटिंग अटेंड करने आते हैं, या आप उनको एक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो ऐसे ही दे आर ऑल्सो एबल टू अटेंड द मीटिंग ऑनलाइन. लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू अब हम क्या करने वाले हैं, ब्लॉकचेन के थ्रू हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति एलिजिबल है वो शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करने के लिए. एंड ऑब्वियसली पायलट प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन. एंड ये जो बैंक है जो आपको न्यूज में दिख रहा है कि Santander becomes first company to use blockchain for AGM voting, ये एक बैंक है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज करा है, बोर्डरिच करके एक कंपनी, उसके साथ मिलकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ. सो सी, जब आप ब्लॉकचेन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है यार, ओनरशिप रिकॉर्ड्स वगैरह सब ऑटोमेटिक हो जाएगा बिकॉज यू विल अपलोड द डेटा ऑन द ब्लॉकचेन. अब जब आप ब्लॉकचेन पे डेटा अपलोड कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, तो सबको अपने आप वो इंफॉर्मेशन मिलने लग जाएगी. बट रिमेंबर दिस, दैट यू हैव टू प्रिपेयर द इंफॉर्मेशन, राइट? हु विल प्रिपेयर द इंफॉर्मेशन? आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू ब्लॉकचेन, बट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि कब आपको प्रिपेयर करना है, राइट? द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड, ये सारी चीजें अभी भी अनआंसर्ड है. ये सारा काम कौन करने वाला है? सीएस विल डू दिस वर्क. कम ऑन सेकंड स्लाइड, सॉरी थर्ड वन, वत्सल. Yes, so see, this is the if you see the purpose of corporate governance, and then you have the properties of blockchain, right? किस तरीके से corporate governance की चार उन properties, उन purposes को जो blockchain है वो enhance करने वाला है, वो कम नहीं करेगा कहीं पर भी, right? तो सबसे पहले अगर आप transparency को देखते हो तो shared distributed ledger, as I said. Then accountability की अगर हम बात करें तो irreversibility of records, because nobody can tamper the records. आप उस रिकॉर्ड को टेम्पर नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ ट्रेसेबल शेयर्स आल्सो. सून ब्लॉकचेन में हम एक कांसेप्ट देखेंगे ट्रेसेबल शेयर्स, तो आपको ये भी पता चलेगा कि 20 साल पहले उसका ओनर कौन था. अभी अगर आप देखो तो कंपनीज को बहुत कम टाइम के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, बट आपको उसके बाद रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. कोई टाइम लिमिट नहीं होगी कि आपको कितने टाइम तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, आप कितने भी रिकॉर्ड्स उस पर मेंटेन कर पाओगे. और उसके बाद में एक और चीज जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, आप आसानी से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो. तो शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन वुड अल्टीमेटली इंक्रीज. हो सकता है कि आपकी जो मीटिंग अभी एजीएम हम जिसको बोल रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, जो सिर्फ अभी एक बार हो रही है, वो एक बार नहीं होगी, वो फ्रीक्वेंटली होगी. सो शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन उस केस में क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा. आप फ्रीक्वेंटली 3 से 4 बार कम से कम मीटिंग में आप पार्ट ले सकते हो, जहां पर अभी आप सिर्फ एक बार पार्ट ले रहे हो. तो वो एक चीज है. उसके बाद में फेयरनेस, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है? अब एक और सोचो आप इस बात को कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो हु विल राइट दोज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? कोई तो होना चाहिए पीछे जो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इनेबल करेगा, लिखने का काम करेगा. एंड वो काम कौन करने वाला है? सीएस, व्हेन विल टॉक अबाउट द कंपनी, राइट? तो वहां पर भी इनका रोल रहेगा. उसके बाद देखो इश्यूज क्या क्या होंगे अब गवर्नेंस के. अब ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन आ गया तो इश्यूज खत्म हो जाएंगे. कंटिन्यूअसली यू हैव स्कैम्स, फ्रॉड्स, ठीक है? ब्लॉकचेन के ऊपर कितने स्कैम्स अभी हुए हैं. अभी डाओ अटैक हुआ है आपका, इफ यू नो अबाउट इट, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, और उससे अटैक से रिलेटेड जो भी चीजें हुई. तो गवर्नेंस के अंदर अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी कि रूल्स एंड प्रोसीजर अबाउट द नेटवर्क मेंबरशिप, बिकॉज ब्लॉकचेन एक कंपनी की पब्लिक नहीं हो सकती. पब्लिक ब्लॉकचेन हुई तो हर कोई उसको एक्सेस कर लेगा. तो वहां पर एक प्राइवेट ब्लॉकचेन का कंसेप्ट आने वाला है. तो उसके रूल्स क्या होंगे, उसके प्रोसीजर क्या होंगे, कौन एक्सेस कर सकता है, किसको आप राइट्स दोगे, किसको आप नहीं दोगे, वो एक थिन लाइन जो है वो आपको पूरा डिफाइन करना होगा. उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ परमिशंस, राइट? देन ट्रांजैक्शन वैलिडिटी,
issuance of new assets, tokenization, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे होगा भाई, शेयर होल्डर्स अभी अपनी ग्रीवियंसेस लेकर के आते हैं, हम उस ग्रीवियंस को सॉल्व करते हैं, रिड्रेस करने का काम करते हैं, जब ब्लॉकचेन पे वो चीज होगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो वो एक अभी भी चीजें हैं जो कि अनडिफाइंड है, जो कि अभी तक डिफाइन नहीं करी गई, बट जब वो डिफाइन होगी तो अल्टीमेटली उसको हैंडल किसको करना होगा, सीएस को, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये वाला काम नहीं करेंगे, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये नहीं करेंगे कि दे आर अपलोडिंग दी डेटा ऑन द ब्लॉकचेन जिसके थ्रू जो है हम आईपीओ लेकर के आ सके, राइट, एंड आईपीओ का एक अल्टरनेटिव अभी आपने सुना होगा आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, तो जब वो आईपीओ का आईसीओ भी होगा तो भी उसको पूरा हैंडल कौन करने वाला है, सीएस करने वाला है, तो वो स्कोप आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला, स्कोप आपका वैसे ही रहेगा, एंड अगेन दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर रिस्क इज देयर, ठीक है, साइबर रिस्क भी बढ़ती जाएगी। सो एक और चीज ये होती है, दो चीजें और होती है इसके अंदर, एक होता है आपका चीफ रिस्क ऑफिसर व्हेन इट कम्स टू सीएस, वी हैव चीफ गवर्नेंस ऑफिसर एंड वी हैव साइबर लीगल स्पेशलिस्ट जिसको हम सीएलएस बोलते हैं, राइट, तो यू कैन बी अ सीएलएस आल्सो, बट जैसे मैम ने बोला कि अब आपका पैकेज इस चीज पे डिपेंड करता है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आता है, आपको साइबर स्पेशलिस्ट भी आप हो, और आपको गवर्निंग भी आती है, राइट, यू कैन कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजंस आल्सो, तो वो जब कॉम्बिनेशन आपका बनता है तो उसके बाद वो पैकेज आपका अपने आप एनहांस होना ही होना है, because you are adding value in different terms, as I said, वो जेम्स वाली बात, right, you are playing different roles, तो ये एक चीज है। उसके बाद एआई पे जस्ट हाँ, ये एआई वाले पे देखो, एआई वाले में अभी एक चीज हुई है कि आप जब मीटिंग करते हो, राइट, फॉर एग्जांपल अभी आपके जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जब भी आपकी मीटिंग होती होगी तो वो जो है वो मिनट लेने का काम करते हैं, राइट, कि क्या डिस्कस करा हमने, एंड देन उसको एक जगह स्टोर करना, एंड देन उसको कम्युनिकेट करना दूसरे लोगों को, तो अब एआई में अगर आप देखो कि मिनट लेना हो, तो अब लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मिनट लेने का काम जो है ना वो बहुत ही मंडेन काम है, मोनोटोनस काम है, उसमें कोई मजा नहीं है, बस आप लिख रहे हो जो बोला जा रहा है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप टेक्नोलॉजी वहां पर लेकर के आते हो, तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, वो स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करेगी, आप जैसे अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब एक जगह रिकॉर्ड हो जाएगा उस टेक्नोलॉजी के अंदर, अब क्या जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ रेलेवेंट है आपके लिए सारी चीजें रेलेवेंट नहीं है, राइट, आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स जो आपके लिए रेलेवेंट है, एंड दोस की पॉइंट्स दे रिक्वायर ह्यूमन एप्लीकेशन, राइट, जजमेंट वहां पर आपको चाहिए, वहां आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, वो चीज एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। जब मीटिंग हमारी होती है, वी रिक्वायर मिनिमम कोरम, है ना, कुछ लोग होंगे तो हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, क्या वो आपकी टेक्नोलॉजी ये पता कर सकती है कि कोरम अब उस मीटिंग के अंदर नहीं है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अभी भी अनआंसर्ड है, और ये कभी भी ह्यूमन एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते, ह्यूमन एलिमेंट हमेशा रहेगा, बिकॉज देयर इज इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पर फ्रॉड होने ही होने वाला है, फ्रॉड आप नहीं रोक सकते, राइट, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लीजिए, उसके बाद असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा रहेगी, नोबडी कैन बी एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग, तो क्योंकि एक स्पेसिफिसिटी है सीएस के रोल की, है ना, हम लीगल साइड देख रहे हैं, गवर्निंग देख रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिसिटी है, अब ऐसा नहीं होगा कि कोई जनरल चीज नहीं देख रहे हम, जनरल चीज होती तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांसेस ऑफ रिप्लेसमेंट, बट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जैसे आप एआई से अगर पूछने जाओगे, आप किसी रोबोट को अगर लेकर के आ जाते हो बोर्ड रूम में, बिकॉज देयर आर रोबोट्स इन द बोर्ड रूम, राइट, एक कंपनी उसने वाइटल नाम के रोबोट को अपॉइंट करा है अपने बोर्ड पे, सो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट थिंक अबाउट इट कि उससे क्वेश्चन क्या पूछना है, राइट, बोर्ड को यही समझ में नहीं आ रहा कि हम सवाल क्या पूछे उस रोबोट से, तो वो सवाल क्या पूछना है वो कौन बताएगा, वो हम लोग बताएंगे, वो एक सीएस बताएगा, राइट, देन उसके बाद कब पूछना है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको ये चीज कब पूछनी है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम आंसर करेंगे, तो आई थिंक कि ये एक जो टेक्नोलॉजी वाली बात हम कर रहे हैं वो आपको थोड़ा बहुत इसका एक फेयर आइडिया मिल गया होगा इस चीज से। मैम एनी मोर Yeah, क्वेश्चंस? Harsh, I think you have raised a very valid point and very apt topic this is actually. देखिए मेरा भी यही मानना है कि ह्यूमन टच और ह्यूमन एलिमेंट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज रोबोट्स और ये जो आप ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं इसमें हमको इनपुट्स देने पड़ते हैं, और हमारा जो काम है जो कंपनी सेक्रेटरी है ये एक कोई रेगुलर काम नहीं है, इट्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क, और हर दिन हर वक्त हमको एक नए इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली आपकी इंटेलिजेंस आपको लगानी पड़ती है, वो आप रोबोट में फीड नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे बोर्ड रूम में आप मीटिंग चल रही है तो कोई भी क्वेश्चन आया किसी भी रिलेटेड तो रोबोट वोंट बी एबल टू आंसर, बिकॉज वो तो प्री फीडेड मटेरियल होता है उसमें, सो आई थिंक वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट जैसे आपने हाईलाइट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एवर। सेकंड इज ह्यूमन इंटेलिजेंस,
आपका जो जजमेंट लेवल होता है, जजमेंट, बिकॉज एज अ सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी यू शुड हैव अ वेरी गुड जजमेंट स्किल्स। आपकी जजमेंट बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज आप जैसे एडवाइस देते हैं बोर्ड को, वो आपकी पूरी जजमेंट पर और आपकी नॉलेज पर डिपेंड होती है। और ये जो हर दिन नए अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं, गवर्नमेंट लाती जा रही है, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर the artificial intelligence to cope up with all these things. So I think वो scope तो हमारा कभी जाने वाला ही नहीं है, because ours is a very highly specialized job. एक बहुत specialized job है, बहुत specialized area में हम लोग काम करते हैं, जो replace करना बहुत मुश्किल है। So anyway, if you look at the current developments, also we have circular economy concept coming in, right? So Yeah. future, अगर हम बात करते हैं ना, तो future it belongs to sustainable companies. To be very Exactly. honest, right? There is no more competition in product. There is no more competition in services. There's a competition in sustainability. Right. भाई कौन कितना ज्यादा सस्टेनेबल है, उस बेसिस पे आप ज्वाइन करोगे ऑर्गेनाइजेशंस को, एंड पीपल आर ऑलरेडी डूइंग दिस. Right. The ESG concept has came. I Yes. think all the companies has to mandatorily follow that. Yes. तो वो तो सस्टेनेबिलिटी, कंपनीज भी सस्टेनेबिलिटी पे ही इम्पोर्टेंस दे रही हैं ज्यादा, तो वो तो रहेगा ही। आई थिंक दिस इज ठीक है, आपको साइड बाय साइड जैसे कोई मोनोटोनस काम होता है, रेगुलर काम होता है, उसमें आपको हेल्प कर देगा। अदरवाइज जहाँ पे आपका जजमेंट लगना है, जहाँ पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स लगनी है, वहाँ पे इसका कोई काम नहीं है एआई का। सो और मेजॉरिटी आई यूज्ड टू डील विद बोर्ड डायरेक्टर्स डे इन डे आउट, और मैं यही देखती हूँ कि इंटेलिजेंस से ज्यादा, आपकी नॉलेज से ज्यादा, आप सामने वाले इंसान को कितने अच्छी तरह से समझते हैं, उसका नेचर कैसे उसको टैकल करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन फैक्टर। बिकॉज आज एक बोर्ड में 12 जने हैं, 12 जनों की नेचर अलग है डायरेक्टर्स की, वो कैसे कंसेंसस बना के एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, वो प्रोसेस कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए कि 12 जने हैं, मुझे 12 डायरेक्टर्स के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टैकल करके एक एजेंडा पॉइंट पे कैसे डिसीजन, फाइनल डिसीजन में पहुंचाना है बोर्ड को। एक्चुअली वो हमारा काम है। तो आप सोच सकते हैं कि नॉलेज से ज्यादा हमको क्या स्किल्स चाहिए। वी नीड अ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज कई बार क्या होता है, इतने जैसे 10 एजेंडा पॉइंट्स होते हैं, 10 में से 10 का डिसीजन नहीं आता है, बिकॉज 12 लोग बैठे हैं बोर्ड पे, सबका अलग व्यू है। तो आप कैसे सबको साथ में लेके डिसीजन, एक फाइनल डिसीजन लोगे, वो आपका रोल है। वो चेयरमैन नहीं करेगा, कोई भी डायरेक्टर नहीं करेगा, वो आपको ही करना है कि सबको साथ में लेके कैसे चलना है। आई थिंक दैट नो रोबोट और नो एआई टेक्नोलॉजी कैन डू दैट। ट्रू मैम। ठीक है, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पैकेज का मैंने आपको बताया, पैकेज डिपेंड्स अपॉन योर आपकी कितनी स्किल्स हैं, आपकी आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो, आप कितनी डिग्रीज होल्ड करते हो, साथ में क्या एक्सपीरियंस है आपको, कौन सी सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, वो सब फैक्टर्स काउंट करते हैं। बट मिनिमम 2 टायर सिटी में भी आप देखो तो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 30,000 to 40,000 की है। और लिस्टेड कंपनी में अगर आप जाते हो तो ऑब्वियसली यू हैव अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो starting be 50, 60, whatever, it depends, how you perform, what kind of skills, how you have developed yourself, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी बंदे को 25,000 भी मिलता है, वही बंदे दूसरे उसके फ्रेंड को 50,000 भी मिलता है, तो वो डिफरेंस है कि आप कैसे परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में और कहाँ पे अप्लाई किया है। It's again a subjective question, right? It's a subjective question. Exactly. And there is no limit actually. There is no higher limit. I already told you that company secretaries are earning 5, 10 crores, per annum salaries, even in practice also. So sky is the limit. और जिस हिसाब से आई थिंक ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बून है एक्चुअली। इतना स्कोप है इसमें। आप मतलब अगर आप प्रैक्टिस में है, जॉब में है तो ठीक है, प्रैक्टिस में भी इतना स्कोप है, आपके पास सेक्रेटरी ऑडिट का स्कोप है। यू आर बिकॉज सर्टेन क्लास ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनको सेक्रेटरी ऑडिट कराना ही है हर साल, कंपलसरी है। फिर प्री सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स है, यू कैन एक्ट एज अ आर्बिट्रेटर। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो नया ड्राफ्ट आया है, उसमें भी कंपनी सेक्रेटरीज को पावर दी गई है रिप्रेजेंट करने के लिए। एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, यू हैव अ पावर टू रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। हम लोग भी रिप्रेजेंट होते हैं। आईबीसी केसेस में, जैसे इंसॉल्वेंसी एक्ट है, उसमें कंपनी सेक्रेटरीज कैन अपीयर, कैन बी अ लिक्विडेटर, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और एजुकेशन मैटर्स हैं, इवन डिपार्टमेंट्स को हमारी ओपिनियन की जरूरत पड़ती है। मतलब स्काई इज द लिमिट। आप काम करना चाहो तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वर्क। और अभी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, इतनी सारी पेनल्टीज इतनी हाई लेवल की बढ़ गई हैं कि कोई भी डायरेक्टर या बोर्ड रिस्क नहीं लेगा नॉन कंप्लायंस का।
So काम की तो कोई कमी नहीं है, you know, if you go, this is a very lucrative career option. I would tell. पहले मैं 2013 से पहले इतना स्कोप नहीं था, बट अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. This is very lucrative career. You can just explore on this. अभी सबसे important question पूछा है कि how, you know, which is better, chartered accountant or company secretary post? I think this is a very normal question actually, and a very difficult choice to make also. बट मैंने मैंने आपको बताया कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, बिकॉज जो सीए है दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीएस इज ऑल अबाउट द लीगल एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट. तो आपका होल्ड किस सब्जेक्ट्स पे अच्छा है वो आपको बेहतर पता है. अगर आपका अकाउंट्स और टैक्सेशन और फाइनेंस पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपका होल्ड अच्छा है, यू आर अ नंबर पर्सन, देन ऑब्वियसली योर चॉइस विल बी डिफरेंट. बट इफ यू हैव अ गुड स्किल और इंटरप्रिटेशन स्किल्स, आप लॉ को अच्छे से इंटरप्रेटेट कर लेते हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, देन आई थिंक दिस इज अ राइट करियर ऑप्शन टू एक्सप्लोर फॉर. फिर आपको दोनों का ड्यूरेशन एक्चुअली कंपेयर करना है. क्या ड्यूरेशन है, कितने साल में आप सीए खत्म कर रहे हैं, कितने में सीएस खत्म कर रहे हैं, कोर्स कंटेंट क्या है. मेजॉरिटी मैंने आपको बोला 60% कोर्स सेम है, तो आप दोनों साथ में भी कर सकते हैं अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है, यू नो वट एवर योर कंडीशन परमिट्स, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है. फिर आपका डिफिकल्टी लेवल कितना है दोनों कोर्स में, वो आपको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा. आई थिंक दैट इज सब्जेक्टिव. आई थिंक दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरपर्सनल स्किल्स और आपके सेल्फ एनालिसिस के किस हिसाब से आपको किस में इंटरेस्ट है. ये थोड़ा अदरवाइज क्वेश्चन कंपैरिजन नहीं है दोनों का. यस मैम, Yes. प्लीज गो ऑन. There is no comparison between these two courses because CA का रोल अलग है कंपनी में और CS का रोल अलग है. दोनों ही KMP है कंपनी के, दोनों एट पार हैं, दोनों ही बोर्ड को एडवाइस करते हैं ऑन डिफरेंट एरियाज. तो आई थिंक कोई कंपैरिजन नहीं है. पहले होता था कि CA इज बेटर देन CS, पर अभी जिस हिसाब से कंपनी लॉ ने यू नो पेंडोरा खोल दिया है CS के लिए, और जिस हिसाब से ड्यूटीज रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ा दी हैं, आई थिंक दे बोथ आर एट पार नाउ. So just to give you one more point, आप एक बार खुद इस चीज को सोच करके देखना कि सीए का स्टार्टिंग कब हुआ, सीएस का स्टार्टिंग कब हुआ, राइट? बिल्कुल सही. एंड अगर वो गैप जब आप देखोगे, जब आप समझोगे, तो आपको एक गैप मिलेगा दोनों की पोजीशन के स्टार्टिंग में. और ऐसा गैप आना ही नहीं चाहिए था अगर सीए कैन प्ले द रोल ऑफ सीएस, राइट? जस्ट थिंक लॉजिकली अबाउट इट. मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, ईयर्स में आपको नहीं बता रहा, बट एक बार आप सर्च आप है ना, कभी भी गूगल पे आप ये डाल करके देखोगे ना कि व्हाई एमबीए वाज क्रिएटेड, just search it, like those who are going for MBA or those who are going for CA, just search कि है ना क्यों ये पोजीशन क्रिएट हुई है. लेट्स नॉट सर्च कि यार पैकेज कितना है, काम कैसा होगा. लेट्स सर्च अबाउट व्हाई दिस पोजीशन गॉट क्रिएटेड, एंड आपको पता चलेगा कि गूगल जी कुछ भी नहीं बताएंगे. You will not be able to search for this, right? So टाइमलाइन देखो, टाइमलाइन कब ये चीज आई है. अगर सीए पहले से चल रहा है, सीएस बीच में आया है, तो इट मींस यस कि यार कोई तो गैप है जिसको फुलफिल करा जा रहा है इस प्रोफेशनल के द्वारा, एंड दैट्स व्हाई दैट जॉब इज बीइंग क्रिएटेड और दैट रोल हैज बीन क्रिएटेड, राइट? तो वो एक चीज है. और ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ही फ्रेम हुआ है, राइट? इट शुड नॉट बी सीए बेटर है या सीएस बेटर है, मैं किसके लिए बेटर हूँ. एंड वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप वो स्किल डेवलप कर रहे हो. आप अभी जिस सोसाइटी में हो, दैट सोसाइटी ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वर्क ऑन योर स्किल. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हमारी इंटरपर्सनल स्किल पे काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे हैं, राइट? मैं और मैम, हम दोनों ही. तो दिस इज समथिंग जो आप कंटिन्यूअसली डेवलप करते हो. एंड यहाँ पर जब आपको सोसाइटी में, तो आई वुड सजेस्ट यू टेक पार्ट इन एवरीथिंग. जहां आप जा सकते हो आप उसमें पार्ट लो, बिकॉज कई सारी चीजें जो मैंने नहीं करी, और मैं वो सबको बताता रहता हूँ कि देखो भाई ये गलती मत करना, ये वाला काम जरूर कर लेना जब आप सोसाइटी के अंदर. तो डू एंश्योर दिस कि आपके जो भी आपको सही लगता है, जो भी प्रोफेशन आपका, उसमें जो भी स्किल आपको रिक्वायर्ड है, आप उसके लिए जरूर कोशिश करो, राइट? उसको इम्प्रूव करने की. और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन अगर है? I think let's open the chat box. हाँ, लेट्स ओपन दी चैट बॉक्स. अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो. Please drop it. The chat box is open. Yeah, guys, please drop the questions in the chat box. गवर्नमेंट का गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो उसके हिसाब से हमारा रोल तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है, तो इंक्रीज ही होता जाएगा.
गवर्नेंस मैम इसलिए भी बिकॉज नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम एजेंसी टू स्टीवर्डशिप। तो Exactly. वो जो एक चीज हुई है कि आपका जो आप पैसा तो आप लगा रहे हो, राइट? सो Right. जस्ट आप लोग में से कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट, चैट में ड्रॉप करो कितने लोग आप में से इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई है यहाँ पे जो करता है इन्वेस्टमेंट, जिसने स्टार्ट करा हो थोड़ा बहुत, जो उसको समझ रहा है टॉपिक को, या कोई भी? I do a little bit of investment, not that amount, smaller तो amount. तो ऑब्वियसली आप जब अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस चीज को मैनेज नहीं कर रहे, राइट? देयर इज अ गैप बिटवीन दी पर्सन जो कि मैनेज कर रहे हैं, जो आप पैसा लगा रहे हो, तो वो मैनेज कर रहे हैं, वो आपके इंटरेस्ट में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट्स द मेन रोल, राइट? वो मेन है हमारे लिए। वो हम कोशिश करते हैं कि वो चीज इंश्योर हो कि सबके इंटरेस्ट में वो काम होना चाहिए। तो ये एक रहेगा। उसके बाद व्हेन शुड आई रजिस्टर फॉर सीएस फाउंडेशन? आई वाज इन बीकॉम फर्स्ट ईयर। सो CS फाउंडेशन अब नहीं है, CS फाउंडेशन खत्म हो चुका है। नाउ यू हैव CSEET, और CSEET के लिए आप जब आप अपेयर होते हो 12th के लिए, तो तब भी आप कर सकते हो, 12th क्लियर करने के बाद भी आप कर सकते हो। तो आप अगर अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। और एग्जाम जो है वो 4 टाइम्स इन अ ईयर होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जनवरी, वी हैव जनवरी, मई, देन जुलाई एंड नवंबर आई गेस। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन यू कैन डू आफ्टर बीकॉम ऑल्सो। तो आपका बीकॉम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में इवन अभी एक रिसेंट नोटिफिकेशन आया जहाँ पर आपको एग्जाम कर दिया है CSEET से। सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव CSEET। जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे उनको अब CSEET नहीं देना, आप सीधे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो एग्जीक्यूटिव में, तो आप उसके बाद भी कर सकते हो। सो उसके अलावा कोई और डाउट अगर हो किसी का? There is a question that how to manage CA and CS together. हाँ, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया, आफ्टर कंप्लीटिंग CA डज वन गेट सम एग्जम्पशन इन सम लेवल्स ऑफ CS? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पहले ये चीज होती थी, बट अब कोई एग्जम्पशन नहीं है। अब कोई भी एग्जम्पशन आपको इसमें अवेलेबल नहीं है। और पहले मिलती थी आपको एग्जम्पशन, बट अब वो चीज हट गई है क्योंकि नए रेगुलेशंस आ गए हैं, उन्होंने पूरा सब मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं है। So how I manage CS with BCom honors? So okay, so see, इसमें आपको ना एक चीज ये करनी पड़ेगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लेक्चर्स किस टाइम पे होते हैं। ठीक है? कई जैसे मैंने एक चीज नोटिस करी है कि हमारे लेक्चर्स जो है ना वो थोड़े उनका शेड्यूल फिक्स ही नहीं रहता है। कभी कोई लेता है, कभी कोई लेता है लेक्चर। बीच में आपको कभी 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, कभी आपको ब्रेक ही नहीं मिलता, कभी लगातार लेक्चर होते हैं। सो ये सब अभी आप भी फेस कर रहे होगे। तो पहले आप अपना ये जो टाइम टेबल है आपका कॉलेज वाला, इसको आप पहले सामने रखो। एंड देन उसके बाद में आपको देखना है कि कहाँ कहाँ टाइम बच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 क्लासेस हैं और 2 क्लास के बीच में आपको 1 घंटे का भी ब्रेक मिल रहा है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, राइट? और जो 2 ग्रुप के लिए अपेयर होता है उसके लिए बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। तो जब आप उस चीज को समझ लोगे कि हाँ मेरे पास कहाँ का टाइम बच रहा है, यू वुड बी एबल टू स्टडी दोनों चीजें साथ में। और इंश्योर करना कि दिसंबर में क्या होता है कि दिसंबर में आपकी कॉलेज की एग्जाम भी होती है और दिसंबर में ही CS की भी एग्जाम्स होती है। तो वहां वो क्लैश होता है। मैंने दोनों एग्जाम साथ में दिए एक ही दिन पे। तो वो एक बहुत चीज, मतलब ऐसा लगता है कि कर क्या रहे हैं, इधर भी एग्जाम है वहां पर भी एग्जाम है। तो अब वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट इंश्योर कि बीच बीच में जो भी टाइम मिल रहा है उसमें भी पढ़ाई करो। तो आप मैं इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। बाकी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। और स्ट्रेटेजिक पोर्शंस हैं CS के एग्जाम्स में, एग्जीक्यूटिव वगैरह में, वो आप मॉड्यूल्स वगैरह देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जहाँ पर हम कम पढ़े और हमको ज्यादा वेटेज मिल जाए। उसके बाद ICSI स्टडी मटेरियल सफिशिएंट, हाँ मैंने उसी से पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। हाउ मच मिनिमम टाइम डज दी CS पाथ रिक्वायर? मिनिमम टाइम आई गेस अगर आप वन गो में कर, बिकॉज वी हैव ऑप्शन, राइट, कि आपको ट्रेनिंग कब करनी है। तो अगर आप पहले सारी एग्जाम्स क्लियर करते हो उसके बाद में आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो आप 3 साल एग्जाम के लिए मान लो, और फिर उसके बाद में आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग है। देन यू हैव CLDP ऑल्सो 30 to 60 days, राइट? तो लेट्स टेक मैक्सिमम 60 days ले लेते हैं। तो
3 साल वो 21 मंथ्स यहाँ पे एंड देन 60 डेज, तो टोटल ऑफ 4.5 5 के आसपास वो हो ही जाएगा. देन हाउ मच मिनिमम टाइम, अच्छा ये हो गया राइट. कैन वी गिव बोथ मॉड्यूल इन वन? हाँ यस यस आयुष, आप दे सकते हो दोनों मॉड्यूल. Yeah, there is a question that how to maintain CA and CS together. टुगेदर कैसे करना चाहिए? सो देखो, टुगेदर में ये बोलूंगा, इवन वो बीकॉम वाले का भी जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें भी ये चीज हो सकती है कि काफी सारी ना ओवरलैपिंग चीजें होती है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप लोग कॉर्पोरेट लॉज, जैसे मैम ने भी अभी क्वेश्चन पूछा था आपसे, आप पढ़ रहे होगे, कंपनी लॉ पढ़ रहे होगे, इनकम टैक्स एंड लॉज इन प्रैक्टिस आपने पढ़ा होगा अभी, राइट. तो वो ओवरलैपिंग चीजें जो है वो आपको एक बार सामने रख करके निकालनी पड़ेंगी कि क्या चीजें ओवरलैपिंग है, और आप उसको एक ही जगह कवर करो. तो सीए और सीएस में काफी सारी चीजें ओवरलैपिंग है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, राइट. देन उसके बाद कंपनी लॉज, तो और इवन कंपनी लॉ थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है सीएस में, सीए में आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ता. तो आप सीए का कवर कर सकते हो बाय स्टडिंग फॉर सीएस, तो कंपनी लॉ आपका वैसे कवर हो जाएगा. देन उसके बाद सीए के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो सीएस को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, तो वहां पे आप सीए में पढ़ लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको सीएस में नहीं पढ़ना पड़ेगा. तो इस तरीके से आपको कॉमन पोर्शंस निकालने पड़ेंगे और फिर एक एक जगह आप कवर करते जाओ. You would be able to crack both. The second one is what is the role and scope of CS in coming time? I think that is. ये तो हमने ले लिया है क्वेश्चन, I need to add in this. हाँ यस. जैसे आपने कंसेप्ट सुना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, राइट. हम्म. लिस्टेड कंपनीज में तो कंपलसरी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं, और कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं. मैम खुद ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सो जस्ट टू. तो जहाँ तक मैंने देखा है कि कंपनी सेक्रेटरीज आर मोर फेवर्ड कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ कॉर्पोरेट लॉज में है. और जब तक, और मैं तो इतने सारे बोर्ड मीटिंग्स वगैरह अटेंड करती हूँ, मैंने देखा है कि डायरेक्टर्स को कोई भी नॉलेज नहीं होती है कॉर्पोरेट लॉज की, और अगर आपको लॉज की नॉलेज नहीं है तो आपका डिसीजन कभी भी वैलिड नहीं आएगा. यू विल लैक समथिंग इन टेकिंग द डिसीजंस. So I think we are the perfect fit for appointment as independent directors also. तो जस्ट आपको अपने आप को ग्रूम करना है. ये आप मतलब इट वोंट बी अ रॉन्ग डिसीजन इफ यू एंटर इन दिस कोर्स एक्चुअली, और इसका स्कोप बढ़ता ही जाएगा. जो मैं देख रही हूँ, देयर इज स्काई इज योर लिमिट आई थिंक. और इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं, मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है, दे आल्सो रिलाई ऑन अस एक्चुअली. जैसे मेरे साथ में कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मेरे साथ एक सीए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसको आधी चीजों में ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज रिलाइंग ऑन मी एक्चुअली. तो इतना ज्यादा हमारा प्रेशर बोर्ड पे होता है, मतलब इतना ज्यादा हमारा फैक्ट बोर्ड पे होता है. आई कैन नॉट टेल यू द रिस्पेक्ट व्हिच वी आर गेटिंग व्हेन वी आर इन द बोर्ड मीटिंग, इन द बोर्ड रूम. वी आर द मेन पर्सन. जैसे वीआईपी होता है वैसे हमको ट्रीट किया जाता है. आई थिंक दिस इज एक्सीलेंट प्रोफेशन टू एंटर इनटू. सो दो और क्वेश्चन है यहाँ पर. आई एम कंफ्यूज व्हिच मॉड्यूल आई शुड गिव फर्स्ट. आयुष, इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप देखो दोनों मॉड्यूल में, अगर आप देखोगे तो दोनों ही मॉड्यूल ना काफी बैलेंस्ड है अपने आप में, राइट. तो आपका ये कंफ्यूजन किस कारण से है वो भी एक बार थोड़ा सा आप अगर मेरे को चैट में बताओगे तो आई वुड बी एबल टू एड्रेस इट इन अ बेटर वे. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, राइट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंपनी लॉ, आपका इंक्लिनेशन है कंपनी लॉ टैक्स की तरफ, तो गो फॉर फर्स्ट. अदरवाइज you can go for second. Yes Tanisha, self study से आप कर सकते हो. You can clear all the levels. भाई बंद करो, गाड़ी वाला आ गया, कैब वाला आ गया. Okay, so should we complete training before CS professional or after? So ma'am, if you would like to yeah, I will highlight this. You see, training is a very important part of the course actually. वो आपकी अपनी खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए भी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप ट्रेनिंग सिलेक्ट करो, मतलब ट्रेनिंग करने का आपका डिसीजन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में करो या प्रोफेशनल करो, आई विल ऑलवेज एडवाइज यू शुड गो अलोंग विद एग्जीक्यूटिव, बिकॉज प्रोफेशनल एग्जाम पास करने में वो पूरा प्रैक्टिकल है, और जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, आई थिंक थियोरी वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू, और you're not able to perform that level. Theoretical आपको इतना ज़्यादा help नहीं करेगा develop करने में. तो executive is a right stage at which you should enter your training.
और ट्रेनिंग ही आपकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका पूरे कोर्स का। सबसे पहले आपको एक राइट ट्रेनर चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे। आप जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी फॉर्म है, क्या काम दिया जाता है, कैसा कल्चर है। कल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ काम नहीं है। बिकॉज अगर आपको राइट कल्चर नहीं मिलेगा किसी भी फॉर्म में तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। कभी मैंने काफी सारी फॉर्म्स में देखा है कि ट्रेनिंग्स को काम ही दिया नहीं जाता है, वो सिर्फ एक क्लेरिकल काम तक ही रह जाते हैं, उनको कभी रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया जाता है, कभी क्लाइंट्स के पास नहीं भेजा जाता है। तो सिर्फ एक काम सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी जो होती है वो आपकी ट्रेनिंग में ही बनती है। मतलब आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई, यू नॉट एबल। मैंने बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स देखे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते आगे जाके बिकॉज ट्रेनिंग में लैक करते हैं। ट्रेनिंग कर ली, डमी कर ली, या प्रॉपर ट्रेनर नहीं है, प्रॉपर कल्चर नहीं है, काम नहीं दिया गया उनको, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई हैं। So this is, I think, is a major decision in your career, that where you have to take a training and at what stage you have to take a training. I think executive is a best time when you should join a good firm. Right. ट्रेनिंग कभी इजी मत लेना। ट्रेनिंग अगर आपकी नहीं हुई तो आपका करियर खत्म। आई एम वेरी फ्रैंक एंड वेरी ब्लंट ऑन दैट। यस मैम, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेनिंग में आप वो गवर्नेंस की जो हम बातें कर रहे हैं उसको कैसे फ्रेमवर्क बनाना है वो आप ट्रेनिंग से बनेगा। आपका मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन, आपका कैरेक्टर ही ट्रेनिंग से बनेगा। अगर ट्रेनिंग में अगर आपको लगेगा ये तो क्या है, मतलब इसमें तो मुझे कुछ स्कोप नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आपको काम दिया नहीं जा रहा है, इसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो आपका पूरा साइकोलॉजिकल पैटर्न ही बदल जाएगा आपके करियर के लिए। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर करियर। कभी भी गलत जगह पे अगर आपको लगे तो टेक इट इमीडिएट स्विच, अटके मत रहो उधर। वो आपका पूरा साइकोलॉजी ही बदल देगा आपके प्रोफेशन के लिए। सो एक और क्वेश्चन जो है वो है, इस सीएस मॉड्यूल प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट? यस, एज आई ऑलरेडी सेड, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो सीएस मॉड्यूल से ही आपको करना पड़ेगा। और आप कॉम्बिनेशन के लिए भी जा सकते हो। देखो सेल्फ स्टडी में क्या होता है ना कि आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज्यादा क्लियर नहीं हो पाते बिकॉज मॉड्यूल में सारी चीजें नहीं डाली जा सकती। जैसे आप किसी भी ऐसे पर्सन से जो कि टेक्स्ट में एक्चुअली वर्क करते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप उनसे टेक्स्ट पढ़ते हो और आप खुद से टेक्स्ट पढ़ोगे तो एक वो डिफरेंस अपने आप आपको नजर आने लग जाएगा। तो आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो कि जो भी स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट है जैसे टैक्स हुआ, सिक्योरिटीज लॉ हुआ, कंपनी लॉ हुआ, उनके लिए आप कोचिंग ले सकते हो। बाकी जो आपको लगता है कि यस इस कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ, जिसके कंसेप्ट में खुद सर्च कर सकता हूँ, राइट, यू कैन रिसर्च ऑन गूगल और ये सारी चीजें, तो आप उसको सेल्फ करो। बाकी के लिए आप कोचिंग ले सकते हो। बाकी अदरवाइज सीएस मॉड्यूल इज इनफ बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो आपको फ्रेम वहीं से होने, कंसेप्ट्स वहीं से आपके बनेंगे। हाउ डज द स्कोप अब्रॉड लुक लाइक? सो इंटरनेशनली, मैम इफ यू वुड लाइक टू टेक दिस, Pardon, what is the how question? does the scope abroad look like? So international level पे. Yeah. So see, our institute has a tie-up and they have entered MOU with different countries all around the world. तो जैसे यूके का है, मैंने भी यूके के एग्जाम पास किए हैं, तो आपको बहुत सारे पेपर्स में एग्जाम्शन मिल जाता है। 2-3 पेपर्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं, यू गेट अ मेंबरशिप नंबर। बट मेरा ये पर्सनल व्यू ऐसा है कि अगर आपको इंडिया में ही काम करना है तो फिर आपको ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं तब आपको, जैसे कनाडा है तो कनाडा के साथ हमने एमओयू किया, आई थिंक उसमें एक पेपर आपको देना है, यू जस्ट हैव टू अपीयर फॉर 1 पेपर, यू गेट अ मेंबरशिप देयर। और यूके है उसमें 3 पेपर्स देने हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ के रेगुलेशंस में भी कंपनी सेक्रेटरी का ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरीज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो जॉब्स का तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आने वाला है, प्रोवाइडेड यू हैव राइट स्किल्स एंड क्वालिटीज इम्बाइब। तो वो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है उस चीज की। तो इवन अब्रॉड में तब भी आपका स्कोप बढ़ जाएगा बिकॉज सी कंपनीज आर गोइंग ऑन, कंपनीज आर ट्राइंग टू वर्क इन डिफरेंट जुरिसडिक्शंस। एग्जैक्टली, कंपनी अब एमएनसीज है मोस्टली। अगर आप एमएनसीज में जॉब करते हैं तो उनका डिफरेंट लोकेशंस पे ऑफिसेज होते हैं, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस करना पड़ता है। तो मैंने कितने बड़ी कंपनी से कंपनी सेक्रेटरीज देखे हैं जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो वो तो सवाल ही नहीं है। मैंने आपको जिस हिसाब से पोजीशन समझाई है, मतलब आपकी पोजीशन के बिना तो कंपनी चल ही नहीं सकती है विद योर।
there is one more question. Isn't it compulsory to do LLB after CS or along with it? नहीं ऐसा compulsory to एड do. ऑन, इट्स एड ऑन, मतलब आप कर लेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया पूरा लीगल मैनेजमेंट का प्रोफाइल है हमारा, तो आप अगर कॉर्पोरेट लॉ मैनेज करते हैं तो बहुत सारी चीजें दूसरे लॉज में भी इम्पैक्ट होती हैं, तो आपको एक कलेक्टिव आप एडवाइस दे सकते हैं बोर्ड को। आई थिंक वो आपका होराइजन एक्सपैंड करती है, सो इट्स ऑलवेज गुड यू नो टू एक्सपैंड योर होराइजन बाय आप। और आई थिंक इजीली एलएलबी हो जाती है। मेरे यहाँ पे ट्रेनीज और स्टाफ है, वो तो एक छुट्टी भी नहीं, दे डोंट टेक ए सिंगल लीव, ओनली एग्जाम के 2 घंटे के लिए अपीयर होना पड़ता है, वही चीज के लिए छुट्टी लेते हैं। इट्स सो इजी, यू कैन अपीयर इट बिकॉज कोर्स मोस्टली सेम होता है। बेसिकली यू गेट अ स्किल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो आपको उतना नहीं करना पड़ता है, यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम टू मच ऑन दैट। Right. So or कोई questions? I think. I think No. everyone is done. Yeah. So you can conclude it, right, Vishal? So guys, I advise you, this is my personal experience, you won't regret. This is a very high profile profession, and in times to come, you know, this importance is going to increase and increase, so no matter what. So I think this will be a right decision for you if you select for this profession. Let's conclude the session. So thank you so much, Bhaiya and ma'am. Definitely the students are motivated to work on their goals. We are very grateful to you both for giving your precious time and guiding the students about the topic CS. It was indeed a pleasure to have you both here today. We hope to have this session once again with you in future, with you both in future. Thank you everyone for being so attentive and interactive here. Hope that it was a very informative and fruitful session to you. So just a minute, Vishal. या एक कुछ और भी doubts यहाँ पर हैं अभी just coming in. Can compulsory to pass CS professional exam or after articleship can get job guarantee? आयुष, आपका थोड़ा फ्रेम करा हुआ क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, so if you can write it again. और एल्स विशाल आप नंबर वगैरह अगर आप शेयर कर सकते या जो भी मतलब जैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? सो यू कैन कनेक्ट मैम के साथ भी और मेरे साथ भी. Any time for any advice. The LinkedIn ID in the chat box. Sure. Yes. That is good for everyone. Yes. Ayush, if you're comfortable, please open your mic and then you can ask the question directly. हाँ, yes, आप ऐसा भी कर सकते हो. Bye, bro. Okay, so I think Ayush is asking like after like after articleship can they get a job like directly like a job guarantee, or they have to also pass that final CS exam? नहीं, obviously you have to pass the exam, right? Because आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर एग्जीक्यूटिव, बट प्रोफेशनल तो आपको पास करना ही होगा ना. नोबडी विल गिव यू दैट मेंबरशिप सर्टिफिकेट विदाउट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, राइट? तो वो तो आपको पास करना ही करना है. So I think Ayush, you are done now. If you have any, then do it. Okay, so no more questions. So let's. So, Thank ma'am, you so just- much, Bhaiya. Thank you so much, ma'am. It was such an insightful sessions by you. Thank you so much. Pleasure interacting with you all. Thank you, ma'am. Wish you all the best. For any kind of query, you may contact me. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bhaiya.